you know what are the joints? Generally, joints are related of just like lower jaw, shoulder joints, and hip joints and wrist. Of wrist. So in the joint injury, dislocation of joint is a main injury, and dislocation of joint can occur in contact sports such as football and hockey, and in sports that may involve falls such as downhill, skiing, wrestling, gymnastics, and volleyballs. The players of basketball and football usually face dislocation of joints in their fingers and hands by striking the ball, ground, or another player. A hard blow to a joint, a fall, a forceful throwing, lifting, or hitting may cause dislocation. In fact, it is a dislocation of surface bones, and so there are different types of dislocations here. I have written on the board here: dislocation of lower jaw, dislocation of shoulder joints, dislocation of hip joints, and fourth one is dislocation of wrist. These are the points where our bones are jointed. ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर हमारे बोन्स ज्वाइंट होते हैं, और यहाँ से आपके डिसलोकेट होने के चांसेस होते हैं. जनरली वी सी द फर्स्ट लोअर जॉ here. Lower jaw means generally in the, you say, the part of the mouth, हमारे जो माउथ का पार्ट है, when the chin strikes any other object forcefully, or it may also occur if mouth is opened wide. Whenever you open wide, the dislocation of jaw is maybe take place. Generally, in the field of sports and games, boxing, in boxing, the jaw may be change the places. ये आपके जॉ जो है, जबड़े जो है, अपने जगह छोड़ सकते हैं, डिसलोकेट होने के चांसेस हो सकते हैं. जैसे मान लीजिए बॉक्सिंग हम लोग खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो बॉक्सिंग में हमारा पंच जो है हमारे जबड़े पर पड़ा और ये यहाँ से हमारा चेंज हो गया, तो हमारा जो माउथ होगा, माउथ की जो लोकेशन होगी, ऊपर का दूसरे साइड में जाएगा और नीचे का दूसरे साइड में जाएगा. दैट इज द डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ. जनरली it will be forcefully attached with any object, you can say, or in the games and sports. Next point here, I have written dislocation of shoulder joints. That is the part of the up our shoulders, and dislocation of shoulder joints may be occur due to the sudden jerk or fall on hard surface. Because here the joint found ball and socket joint, यहाँ पर हमारा ball and socket joint पाए जाते हैं. यहाँ पर जनरली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से, ये जो जॉइंट होता है इसमें से हमारा जो बोन्स होते हैं, वो हड्डियां होती है जो उस सॉकेट से निकल जाती है बाहर. जब निकल जाएंगी तो ये हमारा हैंड्स बिल्कुल फ्री हो जाता है. फ्री का मतलब है ये वर्क करना बंद कर देता है, यहाँ से आपका एक्सटेंशन और एक्सट्रैक्शन कुछ भी नहीं हो सकता है. तो उस कंडीशन में आप इसको पकड़ के जस्ट लाइक पेंडुलम, जैसे घड़ी में होता है ना, वो हिलती रहती है, ऐसे ही अगर आप इसको हैंड्स को केवल एक बार हिला दीजिए और छोड़ दीजिए तो आपका हिलता रहेगा. बिकॉज वाई इट्स मे बी मूविंग, इट इज मूविंग ड्यू टू द फ्री ऑफ जॉइंट्स. ये हमारे जॉइंट से फ्री होने की वजह से ऐसा होता है. So in this part, ball and socket joints may be here. So the end of the humerus comes out from the socket. So when your shoulder dislocates, a strong force such as sudden blow to your shoulders pulls the bones in your shoulder out of place.
So extreme rotation of shoulder joint can pop the ball of upper arm bones, humerus, out of shoulder sockets, which is a part of shoulder blade, scapula. There can there can be partial dislocation of shoulder joints when upper arm bone is partially in and partially out of the shoulder sockets. उस shoulder socket से partially in और out हो जाते हैं. ऐसे conditions में dislocation of shoulder joints होने के chances होते हैं. Generally in the games of volleyball, basketball, डिसलोकेट होने, या और इन क्रिकेट बॉलर्स, इनके अंदर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स अकरेंस सबसे ज़्यादा होती है. उसका मेन रीजन होता है बिकॉज वी वर्किंग बाय आवर हैंड्स फ्रॉम शोल्डर पुशिंग, जस्ट लाइक इन वॉलीबॉल. वॉलीबॉल में जो स्मैशर्स होता है, देखिए जब वो स्मैश करते हैं तो इस हैंड्स का यूज करते हैं और यहाँ पर जर्क जाता है. जब हैंड स्मैश करेंगे तो यहाँ पर जर्क पहुंचने की वजह से ये डिसलोकेट होने के चांसेस होते हैं. ठीक उसी तरह से आपका बास्केटबॉल में ले ऑफ शॉट जब हम मारते हैं, यानी स्टेपिंग शॉट्स लेते हैं, ले ऑफ शॉट्स मारते हैं और बास्केट बॉल को इन करते हैं, बास्केट करते हैं, ऐसे कंडीशन में भी जर्किंग होती है. और जर्किंग की कंडीशन में ये हमारा सॉकेट से जो है ह्यूमरस आउट हो जाते हैं. ऐसे कंडीशंस में डिसलोकेशन जॉइंट्स होने के चांसेस होते हैं. ऐसे ही और भी बहुत से गेम्स हैं जिसमें आपके डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट्स होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट, here joint injury, dislocation of hip joint. Here the part of our west, कमर के पास ही हमारा जो है हिप जॉइंट्स होते हैं. इस हिप जॉइंट में भी डिसलोकेशन के चांसेस होते हैं. इट में कॉज dislocation of hip joints whenever putting maximum strength spontaneously. For example, weightlifting. वेटलिफ्टिंग में क्या करते हैं, हम वेट को रेज करते हैं और लेकर अपने शोल्डर्स पे बैठते हैं. ऐसे कंडीशंस में यहाँ पर हमारे हिप जॉइंट्स को का डिसलोकेट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं इन द कंडीशन ऑफ वेट लिफ्टिंग, बिकॉज वी आर रेजिंग द वेट एबव देन आवर वेट. अपने वेट से भी हम एक्सेस वेट को हम लोग कैरी करने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमारा हिप जॉइंट डिसलोकेट होने के चांसेस होते हैं. क्योंकि उसको रेज को वेट को जब हम रेज करते हैं तो लेकर बैठते हैं और बैठने की वजह से जो है इस जॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो डिसलोकेट होने के चांसेस होते हैं. सो द एंड ऑफ द फीमर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉकेट. That condition may be happen dislocation of hip joints. Next, last, dislocation of wrist, that is our wrist. In table tennis, badminton, or you can say lawn tennis, ऐसे कंडीशन, ऐसे गेम्स स्पोर्ट्स में डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट होने के चांसेस होते हैं. सो इन दिस गेम्स, ए स्पोर्ट्स पर्सन हु पार्टिसिपेट इन these games in which he may fall run the risk of a getting a dislocated wrist. So a miscalculated landing can also may cause the dislocated. Landing cause also may dislocated of wrist, just like in you can say in not in gymnast, generally in the uh, jumping jumping events. There are three type of jumping events: long jump, high jump, triple jump, and pole vault. Generally in pole vault and high jump, because whenever we fall down, our hands may be on the surface. हमारे हैंड्स क्या सरफेस पर पड़ते हैं और उस कंडीशन में यहाँ पर रिस्ट पर प्रेशर पड़ता है, फोर्स पर अप्लाइड होता है. दैट इज द रीजन मे बी हैपनिंग डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट. So it generally occurs to a person who uses his hand to break his fall. It can be painful, very painful. So the actual cause of dislocation of wrist may be a fall or miscalculated move. Dislocations are common in various sports, generally in football, ice sports like hockey,
एंड स्केटिंग, इसमें भी होते हैं। ओ मेरी जान हो परेशान, झूठ बोलने से कोई रीजन नहीं, ना आज कोई है ना कल कोई है, तेरे यार तक कोई कंपटीशन नहीं। क्लास में चल नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज? व्हाट आर द कॉजेस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज? हमारे स्पोर्ट्स इंजरीज के कॉजेस क्या हैं? जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल कॉजेस में आप ले सकते हैं कॉजेस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। improper conditioning, improper conditioning, improper warming up, improper conditioning. For better performance in sports, it is necessary to do proper conditioning. If proper conditioning is not done, then there may be maximum chances of acquiring injuries. So, without proper conditioning, it is नेचुरल टू गेट इंजर्ड इन स्पोर्ट्स। अगर आपने स्पोर्ट्स में कंडीशनिंग, प्रॉपर कंडीशनिंग में नहीं एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो निश्चित है कि आपको इंजरीज अकरेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है improper warming up. Improper warming up, due to the improper warming up, an athlete or a sports person may get injured during training or competition. In fact, he or she should be properly warm up to avoid injuries. इसलिए हमको इंजरीज को अवॉइड करने के लिए वार्मिंग अप एक्टिविटीज फॉलो करनी चाहिए। So for the warming up activities, we do different type of activities. Just like if you can classify warming up, then you know better how we warm up. वार्म अप के कंडीशंस में इफ यू आर स्पेशलाइज्ड देन वार्मिंग अप एक्टिविटी इज अनदर वे, एंड इफ यू आर नॉट स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, नॉट वांट टू डू a specialized activity, then you do other warming up. So it is here two types of warming up. First of all, you can say active or passive warming up, and another in normal condition warming up, normal warming up. So we do this two type of warming up activities for the avoiding injuries in different activities. Next, unscientific way of training. Unscientific way of training. Here a word used unscientific means totally related with technique and tactics. Technique and tactics. If you don't know about the techniques of that ट्रेनिंग शेड्यूल्स इन दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अगर आप उस गेम्स एंड स्पोर्ट्स की जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट नोइंग टेक्निक एंड एंड टैक्टिस, then you failure in your games and sports and you may be not success in a proper way. So for the approaching or better performance, you may be ट्रेंड इन ए साइंटिफिक वे। आपको ट्रेंड होना चाहिए साइंटिफिक वे में। सो देयर आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ अकरेंसेस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज टू द एथलीट्स और प्लेयर्स हु परफॉर्म ट्रेनिंग इन एन अनसाइंटिफिक वे। अक्सर है कि आप विदाउट रूल रेगुलेशन, बिना टेक्निक्स के, बिना टैक्टिक्स के अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो यह निश्चित है कि अनसाइंटिफिक वे में परफॉर्म करते हैं तो इंजरीज होने की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं।
So the players, it means that players should have good proper knowledge about training, and he should have knowledge about overtraining and undertraining also. Due to ignorance of scientific laws, sports person may be easily injured. जैसे आप लोग, बहुत बच्चे जो होते हैं जिम करने के लिए जाते हैं, और अनसाइंटिफिक वे में जब एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिम की, तो मसल्स टीयर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। देखिए कहीं कहीं ऐसा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि वो वेट उठाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों? बिकॉज आप लोग क्या होते हैं, इनर्जेटिक होते हैं, आप लोग के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जेटिक होते हैं, जोशीले होते हैं, इसकी वजह से आप लोग एक्सेस वेट उठाने का प्रयास करते हैं। बट इन द ट्रेनिंग मेथड्स इट इज नॉट वे टू डू दैट एक्टिविटीज। उस एक्टिविटीज को विदाउट ट्रेनिंग शेड्यूल्स के अनुसार अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो मे बी यू इंजर्ड, और यू मे बी कम्स इन द इंजरीज, soft tissue injuries, or you can say bone injuries, or joint injury also. So you perform, if you want to perform any activity, maybe you perform in a scientific way. Next, lack of fitness. Lack of fitness, physical fitness, that is the lackness of fitness in the students, most probably, but generally it may be physiological and psychological, both type, दोनों तरीके से हो सकता है, एक मानसिक आधार पर भी और एक शारीरिक क्रिया विज्ञान के आधार पर भी आपके अंदर जो होती है लैकनेस ऑफ फिटनेस पाई जाती है। जनरली इफ ए प्लेयर इज नॉट एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली फिट, he or she may get injured easily. It is also said that an unfit individual is more prone to injuries in the field of sports. जनरली देख लीजिए, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। इफ यू आर राइडिंग एनी बाइक, अगर मोटरसाइकिल अगर आप चलाते रहते हैं और उस समय आप साइकोलॉजिकली आपका माइंड अगर ड्राइविंग पर नहीं है और कहीं और उड़ रहा है, तो निश्चित है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। और वहाँ पर आप क्या है, अपने इमोशन को छोड़ देते हैं और वहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन दैट वे क्या है, एक्सीडेंट को आप चांस देते हो। सो इन द स्पोर्ट्स एंड गेम्स ऑल्सो, इफ यू आर नॉट साइकोलॉजिकली फिट, अगर मानसिक आधार पर आप ठीक नहीं है, तो आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी बार बार गलतियां करेंगे और बार बार इंजरीज होने के चांसेस होंगे। सो साइकोलॉजिकली फिट होना भी जरूरी है। अगर आप शारीरिक रूप से फिट है, यानी एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों आधार पर अगर फिट है और साइकोलॉजिकली फिट नहीं है, तो निश्चित है कि आपकी एक्टिविटी रॉन्ग वे की तरफ जाएगी। अक्सर उसको हम लोग पागल कहते हैं। अक्सर देख लीजिए, पागल रोड पर घूमते रहेंगे और वो क्या है, एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली एकदम अच्छे होते हैं, देखने में बहुत हिस्ट पुस्ट लगेंगे, लेकिन वो साइकोलॉजिकली फिट नहीं होते हैं, इसलिए उनकी एक्टिविटीज जो होगी रॉन्ग होती है और उसको हम लोग कह देते हैं कि पागल है। सो इन दैट वे स्टूडेंट्स आर ऑल्सो डूइंग इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में बच्चे भी, प्लेयर्स भी ऐसा करते हैं। अगर ध्यान उनका दूसरी तरफ अगर डाइवर्ट हो गया, तो निश्चित है कि उनका परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाता है और अपने टारगेट को वो अचीव नहीं कर पाते। हेयर फिटनेस यूज, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल फिटनेस? यार क्वेश्चन एराइज, फिजिकल फिटनेस का एक यहाँ क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल फिटनेस? फिजिकल फिटनेस मीन्स यू हैव कैपेसिटी और टेंडेंसी टू वर्क एनी फिजिकल एक्टिविटीज बाय डिलेइंग फटीग। अगर फटीग को डिले करने की कैपेसिटी अगर आपके अंदर है काम, और उसके बाद आपको आपके अंदर वर्किंग कैपेसिटी है, देन यू आर फिजिकली फिट, अदरवाइज यू आर नॉट फिजिकली फिट। That is the main here, fitness. So if you have lackness of fitness, then you may be injured in any activities. आपको इंजरीज किसी भी एक्टिविटीज में हो सकती है। सो इन अदर
इन गेम्स और स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि केवल गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, किसी दूसरी एक्टिविटीज में भी आपको हार्म हो सकता है, ऐसा नहीं है. सो नेक्स्ट, लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज. Lack of sports facilities. Lack of in sports facilities. Injuries are usually faced by sports person who lack proper sports facilities. If the ground is not smooth and there are ditches in it, there can be sprain, abrasion, and other fractures to a player. If equipment is not proper, injury may also occur. देख लीजिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटी अगर अच्छी नहीं होती है, व्यवस्थाएं अगर अच्छी नहीं होती हैं, तो इंजरीज होने के चांसेस होते हैं. जैसे फील्ड अच्छा नहीं है, इक्विपमेंट अच्छे नहीं है, तो निश्चित है दैट इज द लैकनेस ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी. उस कंडीशंस में आपको इंजरीज होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं. दैट में भी occurrence of injuries in the field of sports and games. Injudicious officiating. Injudicious officiating. Injudicious मतलब इनजस्टिस. ऑफिशिएटिंग जो करते हैं, यानी जो रेफरशिप, अंपायरिंग, जो एक्टिविटी फॉलो करते हैं, उसमें अगर कहीं इन जजमेंट होते हैं, यानी जजमेंट करने में गलतियां होती हैं, तो उसकी वजह से भी इंजरीज होने की संभावनाएं होती हैं. बिकॉज जनरली रूल्स ऑफ द गेम्स आर नॉट ओबे इन सच टाइप ऑफ मैचेस. और वैसे मैचेस में जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उसको हम फॉलो नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि जब इनजस्टिस होने लगता है तो हम भी कहते हैं कि हम भी इनजस्टिस एक्टिविटीज करेंगे, रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे और गलत तरीके से खेलेंगे. दैट इज द मेन रीजन जुडिशियस ऑफिशिएटिंग इज मस्ट. यानी न्याय पूर्वक आपकी ऑफिशिएटिंग होनी चाहिए, न्याय अच्छे से होना चाहिए. अगर जस्टिस अगर हम करते हैं प्लेयर्स के साथ किसी भी एक्टिविटीज में, तो निश्चित है इंजरीज से उनको बचाया जा सकता है. अदरवाइज इनजस्टिस, इनजुडिशियस ऑफिशिएटिंग अगर होती है तो मे बी इंजरीज अकरेंस हैपेंस. निश्चित है कि इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. उसका रीजन होगा कि हम फ्रीली खेलेंगे. जब फ्रीली खेलेंगे तो एक्टिविटीज, वो एक्टिविटी करेंगे जो रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट होंगे. Another point also, different points here. No use of protective equipment also. No use of protective equipments means sports gears which are used by us in the field of games and sports for safety point of views. अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स गियर यूज करते हैं. इन क्रिकेट ऑल्सो, जस्ट लाइक इन क्रिकेट, हेलमेट, एल्बो पैड, थाई पैड, एड्स, फिर नी पैड, शूज, इन सब का हम लोग यूज करते हैं. दीज आर द सेफ्टी इक्विपमेंट्स. इफ वी आर नॉट यूजिंग दिस इक्विपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स क्रिकेट्स, देन व्हाट हैपन, इट मे बी इंजर्ड. वो बॉल आकर आपके सर पर लग सकती है, आंखों पर लग सकती है, आपके हैंड ब्रेक होने के चांसेस होते हैं. इवन यू आर मे बी डेथ ऑन द स्पॉट. आप मर भी सकते हैं अगर चोट लग जाए तो. ऐसे कंडीशंस हुए हैं आपके क्रिकेट में, एग्जांपल के तौर पे. तो यू नो बेटर. सो यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज मस्ट इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. नेक्स्ट, प्रैक्टिस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फटीग. प्रैक्टिस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फटीग. जिस समय आप थक चुके हो उस समय अगर प्रैक्टिस करते हैं तो मे बी हार्म टू यू. वो आपके हार्म हो सकते हैं. यू मे बी इंजर्ड. आप चोट आपको लग सकती है. इफ यू आर इन फटीग, मे बी टेक रेस्ट.
अगर आप इंजर्ड हो जाते हैं तो रेस्ट लीजिए. आफ्टर रेस्टिंग, whenever your body temperature is in normal cooling, then you do फिजिकल एक्टिविटीज. उसके बाद आपको फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए. थके हुए हैं तो उस समय नहीं करना चाहिए. प्रेशर ऑफ कंपटीशन ऑल्सो. कंपटीशन जब आते हैं तो निश्चित है कि हम लोग प्रेशर में रहते हैं. और इवन इन स्टडी ऑल्सो, नॉट इन फिजिकल एक्टिविटीज. स्टडी में भी देख लीजिए, जब आपके सर पर एग्जाम आ जाता है, टेस्ट आ जाते हैं, बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं, तो यू मे बी साइकोलॉजिकली अनफिट. साइकोलॉजिकली बिल्कुल अनफिट हो जाते हैं. इतना प्रेशर होता है कि आप दिन रात पढ़ते रहेंगे, सोचेंगे कि अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए और हमारे परफॉर्मेंस बेटर हो इन स्टडी. लाइक दैट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स आल्सो, कंपटीशन की जब होते हैं उस समय हमारे अंडर टेंशन्स होते हैं, स्ट्रेसेस होते हैं, एंजाइटी भर जाती है. और उस स्ट्रेसेस, टेंशन्स, एंजाइटी को रिमूव करने के लिए डिफरेंट टाइप के अकरेंस हमारे बॉडी में होने लगते हैं. जस्ट लाइक यूरिनल प्रॉब्लम्स और थर्स्टी, गला सूखने लगेगा, यूरिनल प्रॉब्लम्स होने लगेंगे. ये सभी क्या प्रेशर ऑफ कंपटीशन होते हैं. और इसलिए प्रेशर ऑफ कंपटीशन से रिमूव करने के लिए उसको हम लोग क्या मोटिवेशन एक्टिविटी फॉलो करते हैं. यानी जो टीचर्स होते हैं, जो कोचेस होते हैं, स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, अपने स्पोर्ट्स पर्सन के साथ रहते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अंडर प्रेशर में ना आए और अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे जो एज यूजुअल जो उनकी एक्टिविटी है. दैट इज द मेन रीजन for the pressure of competition, removing the pressure competition. So at that time dignity is attached to his or her country. क्यों? कारण भी होता है. डिग्निटी को मेंटेन करना है. अपने हम स्कूल से गए रहते हैं या अपना नाम हमको कमाना रहता है, फेमस करना रहता है, उसकी वजह से हम लोग क्या इस तरह के प्रेशर्स में आ जाते हैं. सो ही और सी एक्सर्ट्स मैक्सिमम फोर्स. और क्या होता है, हम अपना मैक्सिमम फोर्स यूटिलाइज करते हैं फॉर सक्सेस बियॉन्ड हिज आर हर कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी से बढ़कर. इसलिए ना कभी कभी लोग पढ़ते पढ़ते भी पागल हो जाते हैं. ऐसा भी होता है, कभी कभी लोग स्टडी करते करते भी पागल हो जाते हैं. उसका मेन रीजन यही होता है कि वो क्या है, अपनी कैपेसिटी से एक्सेस पढ़ते हैं. जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार आपको स्टडी करना. हाँ, आप 25% उसको एक्सीड कर सकते हैं, लेकिन जहाँ 25% से एक्सेस अगर कैपेसिटी हम यूज करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर जो डिफरेंट टाइप के इंजरीज है, यू कैन मे बी डिजीजेस मे बी अकर्स, हो सकते हैं. तो दैट इज द मेन रीजन. So the player may be injured, or you can say you may be injured, or you may be comes in disease. So don't take pressure and don't do beyond your capacity any activities. अपने beyond से कभी भी कैसे कैपेसिटी के अधिक आपको एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, यानी अपनी क्षमता से अधिक नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट्स, केयरलेसनेस ड्यूरिंग द गेम्स. अभी हमने इसके पहले आपको एग्जांपल दिया है. केयरलेसनेस मीन्स जब आप साइकोलॉजिकली फिट नहीं रहेंगे तो निश्चित है कि आप क्या है गेम्स में कहीं ना कहीं फॉल्ट करेंगे, गलतियां करेंगे. अक्सर होता है कि सपना देखने लगते हैं लोग, फील्ड में खेलते खेलते सपना देखने लगते हैं और जब ड्रीम में हो जाते हैं तो निश्चित है कि पता चला बॉल उनके पास से ही निकल गई और आप पता ही नहीं चला. So it's done. They may be get injured due to the carelessness. There may be some moments when players do not remain aware and conscious. ऐसा वो समय होता है जब उस समय वो कॉन्शियस नहीं होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं about the games. So these are the causes of the sports injuries. Yeah, reoccurrence of injuries, improper sports equipment, overuse of muscles also. That means fatigue. Next point here topic is here about the dislocations. First aid. First aid in the injuries.
Generally, in first aid, we use to take proper rest, avoid bending of knees and climbing stairs, apply ice pack 3 or 4 times daily for 10 minutes. Continue these methods for 3 or 4 days. अगर अक्सर हम लोग को 3 से 4 दिन की फर्स्ट एड यूज करने चाहिए. जस्ट लाइक यार गिवन आइस पैक का हम लोग यूज करते हैं. जहाँ पर चोट लगी होती है उसको हम आइस से क्या सेकाई करते हैं. After applying ice for 3 or 4 days, apply hot water bags. 3 से 4 दिन जब हम आइस वाटर का यूज कर लेते हैं उसके बाद हॉट पैकेट्स का यूज करते हैं, हॉट वाटर का यूज करते हैं, बैग्स का या हॉट पैड्स होते हैं, हॉट बैंडेज होते हैं एंड जेल, उसका यूज करके हम लोग अपने इंजरीज को कम करने का, रिड्यूस करने का प्रयास करते हैं. नेक्स्ट, इफ बाई यूजिंग ऑल दिस फर्स्ट एड, इसको सभी फर्स्ट एड को यूज करने के बाद भी अगर रेस्ट नहीं मिलता है, इन दैट कंडीशन यू कंसल्ट योर डॉक्टर. अपने डॉक्टर से उसको कंसल्ट करना चाहिए. एंड देन उसके बाद ट्रीटमेंट है. एक्सरे ऑफ नी जॉइंट्स और अदर जॉइंट्स should be done to check the displacement of joints. Next, opt for knee injuries or maybe shoulder injuries or dislocation of hip injuries or wrist. इसके लिए आपके सर्जरी को की जरूरत पड़ सकती है. अगर पहले वाले ट्रीटमेंट्स जो हमने बताया वो अगर उससे आराम नहीं होता है तो ये कंडीशंस आपके ऊपर अप्लाइड हो सकती हैं. सो दैट इज द ओवर यूज इंजरीज. ये सभी क्या है, ओवर यूज इंजरीज हैं जो हम लोग अक्सर एक्सेस यूज ऑफ जॉइंट्स करते हैं. सो दीज इंजरीज डेवलप एट अ स्लो पेस एंड एथलीट्स आर अनअवेयर अबाउट देम. These injuries may be happening generally, you can say tennis elbows, runners knees. अक्सर इसमें आपके इंजरीज के चांसेस होते हैं. So next point is first aid. Here first aid, all of you heard about the first aid. First aid के बारे में सब लोग आप लोग जानते हो और सुने भी होंगे. First aid, the sports person or you can say the coaches maybe knows about the first aid. अगर जो कोचेस होते हैं वो अगर फर्स्ट एड के बारे में नहीं जानते हैं तो वो स्पेशलाइज्ड कोच नहीं हो सकते हैं. इसलिए फर्स्ट एड के बारे में जो कोचेस होंगे फर्स्ट एड के बारे में जरूर वो जानते होंगे कि फर्स्ट एड के कंडीशंस में क्या क्या हम लोग अप्लाइड कर सकते हैं. इसलिए फर्स्ट एड के बारे में कोचेस अच्छे से जानते हैं कि हम अगर कोई भी इंजरीज होती है तो ऑन द स्पॉट हम कौन सा एड यूज करेंगे जिससे कि उस स्पोर्ट्स पर्सन को आराम मिल सके. सो फर्स्ट एड इज एसेंशियल फॉर एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज. सो इन एवरी स्पोर्ट्स टीम्स वन specialized doctor is there, physiotherapist you can say, or sports medicine doctors maybe in the in that team. उस टीम में वो डॉक्टर्स भी होते हैं जो इंजरी होने के कंडीशंस में आपको फर्स्ट एड अप्लाइड करते हैं. So every individuals of life and work are closely related to his environments. So man has progressed in various fields of life such as industrialization, mechanization, transport and sciences. Therefore this age is called an electronic age or a space age. But on the other hand, this development has created such conditions that a person may get injured anywhere and at any time. कहीं भी और कभी भी किसी भी समय आपको इंजरी हो सकती है. इवन इन द इंडस्ट्रीज ऑल्सो, जो इंडस्ट्री में वर्कर काम करते हैं उनके उनके ऊपर भी इंजरी होने की संभावना रहती है. इसलिए वहाँ भी फर्स्ट एड अप्लाइड होता है, वहाँ भी फर्स्ट एड रखा जाता है
क्योंकि दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती है, ये सभी लोग जानते हैं और हम और आप दोनों लोग जानते हैं कि फर्स्ट एड इसेंशियल माना जाता है. So, in spite of good measures aimed at industrial safety and the development of safety devices and the techniques, the number of accidents is still high in techniques. So, the number of accident is still high in industries and especially in day-to-day life. There is no definite time of such days.